Hello friends. So today we are going to taking a lecture on principles of business communication. So let's see the principles which are most important part in business communications. So let's start the today's video. Principles. Let's see one by one. Clarity of objective. Number second, proper message. Number third, selection of media which is known as the channels. Number 4, a removal of barriers. Number 5, climate change. Number 6, technology. And number last, effective feedback. So these are 7 parts, the principles of business communications, which should be here. Principles of business communications. Let's see one by one as I explained by clarity of objective, proper message, selection of media, channel, removal of barriers, climate, technology, and effective feedback. So let's see one by one. Principles of business communication. Number first, clarity of objective. What is the need while we are communicating to someone? When the timing of communication, we have to be clear to our object. What is to be the our object, or why we should talk to him, or what is the reason behind that I am going to communicate to someone. What is the reason? What is your purpose? What is your object? What I am said? What is your purpose? What is your object? This is the first point of our, which is a principle of business communication. We should to know that very well. What is our clarity about our objective while we are going to communicate to the someone. So let's see. The objective of communication should know the communicator. What is that? Objective should know the communicator. जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको ये बात का ध्यान होना चाहिए, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। आप अगर कम्युनिकेटर हो तो आपको आपके ऑब्जेक्टिव, आपके पर्पस का पता होना चाहिए कि आप क्यों उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इट मीन्स व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। अगर आपका ऑब्जेक्टिव स्पष्ट है, आपको मालूम है किस चीज़ के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, देन नो प्रॉब्लम। लेट्स सी टू द पार्ट ऑफ नेक्स्ट हियर। व्हाई कम्युनिकेशन इज नेसेसरी? He should be completely able to answer this question. He should be completely able to answer this question. He should be means who? A communicator. Who? A communicator knows very well what is his object while he goes to communicate to someone. He know that very well what is necessary about that this thing. Why we are go to there for communicate. Why we are go for their communication. It means communicator knows very well what is his object, and he know that very well what are the most important parts to be there in a answer that questions. So this is the necessary part while we are going to communicate to someone. Ethical communication. Look, here is one type of communication which is a ethical communication. Ethical यानी क्या? तत्वतः। ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल्स यानी क्या? तत्व। प्रिंसिपल्स को हम तत्व ही कहते हैं, है कि नहीं? प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन ये देख रहे हैं, तो इसमें क्या है? इथिकल कम्युनिकेशन. इथिकल कम्युनिकेशन शुड बी ट्रू. लुक, हियर इज व्हाट इथिकल कम्युनिकेशन शुड बी ए ट्रू, ऑनेस्ट, क्लियर, accurate and sincere. While we are communicate to someone, that time there is a ethical communication. If you are going to communicate to someone, that should be a pointable noted. Your communication should be a true, honest, clear, accurate and precise, or you can say that sincere communication. So this is our first part, or this is our first point, clarity of objective, which is a principle of business communication. चलिए इसको हटा देते हैं जरा सा, है क्या? इथिकल कम्युनिकेशन एक पार्ट होता है, एक टाइप है बिजनेस कम्युनिकेशन का, या फिर कम्युनिकेशन का आप कह सकते हैं, बट विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन
business communication, or which is most important type of business communication. Let's see next point, proper message. While we are going to communicate to someone, we know that very well what is our objective, but we know that very well what is a proper message or what is a message while we are transferred to sender. While we are transferred to sender this message, it means our message should be a proper. हमारा मैसेज कैसे होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, एक्यूरेट लैंग्वेज में होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए. इट मीन्स प्रॉपर मैसेज, प्रॉपर गाइडेंस होता है, प्रॉपर फीडबैक हमें तब मिलता है, इफेक्टिव फीडबैक जिसको हम कहते हैं. लेट्स सी प्रॉपर मैसेज. Communication should be constructed the message in a meaningful manner. Look, here is one line which is most important part of the here in this point. Message in meaningful manner. What is mean? मीनिंगफुल मैनर, एक उद्देश्यपूर्ण, वहाँ पर कोई भी संदेश आप भेजना चाहते हैं तो वो आपका ऑब्जेक्टिव के टाइप से उद्देश्यपूर्ण, प्रॉपर लैंग्वेज में, प्रॉपर अल्फ़ाबेट्स में, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. दैट इज पॉइंटेड. लेट्स सी नेक्स्ट हियर. इनकोडिंग ऑफ थॉट्स इज एन इंटेलेक्चुअल टास्क. लुक, इनकोडिंग ऑफ थॉट्स is an intellectual task and it has been done with proper care and thinking. And proper care and thinking. What is that encoding? Here is one word which is a difference word to you guys. Encoding and decoding, this is the part of business communication process or business or principles under the communication. इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैं जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है? इनकोडिंग है. इनकोडिंग और डिकोडिंग ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं. जैसे कि जब आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हो तो आप सेंडर हो. जब आप कोई मैसेज सेंड करो तो सेंड करने से पहले आप कोई भी मैसेज को क्या करेंगे बेटा? इनकोड करेंगे, इनकोडिंग करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, उसको मेकिंग करेंगे, उसको तैयार करेंगे, ठीक से उसको उसमें ऑब्जेक्ट डालेंगे, उसमें प्रॉपर गाइडेंस डालेंगे, प्रॉपर लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ करेंगे. सो दीज आर द पार्ट इज अ इनकोडिंग पार्ट. इट मीन्स इनकोडिंग इज अ पार्ट ऑफ सेंडर एंड अनदर विच इज़ अ डिकोडिंग. व्हाट इज़ अ डिकोडिंग? डिकोडिंग वो चीज़ होती है जहाँ पर रिसीवर कोई मैसेज को रिसीवर कर रहा है और उसको समझने के लिए वो उस चीज़ को डिकोड करता है अपनी लैंग्वेज में. सो दैट इज द पॉइंट कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो जो कुछ भी डिकोड करता है उसको हम कहते हैं डिकोडिंग. कौन करता है? रिसीवर डिकोडिंग करता है, सेंडर इनकोडिंग करता है. नाउ व्हाइल वी आर ट्रांसफरिंग आवर मैसेज टू सेंडर, इट मीन्स वी हैव टू वेरी वेल दैट टू इनकोड आवर थॉट्स इज एन इंटेलेक्चुअल टास्क. ये बड़ी इंटेलेक्चुअल टास्क होती है अगर कोई भी मैसेज हम डिलीवर कर रहे हैं उससे पहले. इट हैज़ बीन डन विद अ प्रॉपर केयर, और ये चीज़ को हमें प्रॉपर केयर से कंस्ट्रक्ट करना होता है, प्रॉपर वे से थिंकिंग करके मैसेज डिलीवर करना होता है. लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट. थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आपको अगर समझना है तो बेटा थोड़ा सा वक्त देना ही पड़ेगा. लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट, सिलेक्शन ऑफ चैनल विच इज़ अ मीडिया. सो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि मार्केट यानी क्या? बाहर की दुनिया. अब आप बोलोगे सर कहाँ पे लेके जा रहे हैं? बाहर की दुनिया यानी कि क्या? मार्केट बेटा. मार्केट में हम लोग देखेंगे कि बिजनेस के दौरान में आपके पास में बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे मीडिया होते हैं. अब ये मीडिया और ये चैनल टीवी वाले नहीं हैं. टीवी वाले नहीं हैं बेटा, टीवी वाले हैं लेकिन अभी नहीं है. फिलहाल हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपको कोई भी मैसेज डिलीवर करना है तो आपको आपका चैनल, आपका मीडिया ठीक से सिलेक्ट करना होगा, ठीक से सिलेक्शन करना है. क्यों? बिकॉज देखिए ना, पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर से बता दूंगा क्या होता है सिलेक्शन ऑफ मीडिया. इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेशन विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करना है, कोई भी मैसेज डिलीवर करना है विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, you want to choose a good media or accurate communication media for the effective communication. देखिए ना, अब ऐसे समय में आपको इफेक्टिव मीडिया चूज करना है.
So what is your effective media while you are going to communicate in your organization? For example, let's see, अगर बॉस है बेटा, बॉस को आपको कुछ मैसेज सेंड करना है, डिलीवर करना है, आप एम्प्लॉय हो तो आप डायरेक्ट जाकर उनसे बात करेंगे क्या? नहीं ना कर सकते। अगर फ्री ऑफ कंसेंट है, फ्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, देन नो प्रॉब्लम, बट अगर नहीं है तो आप ऐसे समय में क्या करेंगे? आप ऐसे समय में करेंगे कि आपका जो टीम लीडर है, आपका जो टीडी है, टीडी यानी क्या? टीम लीडर, आपका जो टीडीएल है, टीम लीडर है, वो बंदे को आप कहेंगे कि भाई मेरा मैसेज है वो डिलीवर कर किया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने उनको मीडिया बनाया, तो ये मीडिया क्या है बेटा? इसको हम नाम देंगे फेस टू फेस मीडिया, या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन। दिस इज द चैनल, दिस इज द मीडिया while you are going to transfer your message to your boss. This is the media to be the here. Now look, I am here delivering my lecture by the which media helping? By the help of broadcasting media. What is that? By the help of broadcasting media. और जैसे कि आप अगर किसी आपके दोस्त को मैसेज सेंड कर रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? आप मोबाइल का यूज़ करेंगे, सबसे बड़ी बात। व्हाट्सएप का यूज़ करेंगे, सबसे बड़ी बात। फेसबुक का यूज़ करेंगे, मैसेज सेंड करेंगे, एसएमएस, जिसको हम शॉर्ट एसएमएस, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस है कि नहीं? तो ये पार्ट क्या हो जाते हैं? ये पार्ट हो जाते हैं आपके मीडिया और चैनल्स हो जाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ बैरियर्स। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, रिमूवल ऑफ बैरियर्स। बैरियर्स होते क्या है? देखेंगे, ठीक से देखेंगे, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। रिमूवल करना है, रिमूवल यानी क्या? निकाल देना है, उनको वहाँ से हटा देना है। रिमूवल ऑफ बैरियर्स, बैरियर्स होते क्या है? बैरियर्स इज द ऑब्स्टेकल्स ऑफ, व्हाट इज बैरियर्स? इज द ऑब्स्टेकल्स ऑफ व्हाइल कम्युनिकेट टू समवन, और बैरियर इज हर्डल। व्हाट इज आई एम सेड? बैरियर इज द हर्डल while sender transfer his message to receiver. What is barrier? Is the hurdle while transfer sender his message to receiver. hurdle यानी क्या? यहाँ पर वर्ड है hurdles, यानी क्या? कि बेटा वो समस्या है, वो क्या है? समस्या है। तो ऐसी समस्या को हम निकाल देंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने आपके दोस्त को एसएमएस सेंड किया। क्या है बेटा? एसएमएस सेंड किया, बट अगर आपके पास में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो एसएमएस सेंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है? दिस इज योर बैरियर। एंड इफ यू वांट टू सेंड योर मैसेज, दैट मीन्स यू हैव टू रिमूव दिस पॉइंट। देन व्हाट शुड यू डू? तब आप क्या करेंगे बेटा? तब आप बोलेंगे कि भाई मेरे पास में तो एसएमएस का बैलेंस नहीं है, बैलेंस करवा लेते हैं, या फिर कहीं से वाईफाई ले लेते हैं, तब जाकर मीडिया के जरिए आप वो मैसेज सेंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने वो बैरियर को हटा दिया, रिमूव कर दिया। दैट मीन्स वाइल वी आर कम्युनिकेट टू समवन, वी हैव टू रिमूवल ऑफ दिस बैरियर्स बिकॉज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेट्स सी, समटाइम्स मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज मे काउज कंफ्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ना, समटाइम्स मिस इंटरप्रिटेशन क्या होता है बेटा? एक समस्या खड़ी करता है, एक कन्फ्यूजन खड़ा करता है। कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन में। तब हमें क्या करना है? तब हमें ऐसी चीज़ को रिमूव कर देना है। देखेंगे आगे, ऑल पॉसिबल्स हर्डल्स आर रिमूव्ड। जितने पॉसिबल समस्याएं, जितनी पॉसिबल है हटाने की बैरियर्स, उतने आप हटाओ, उससे आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से, नॉइज क्या देख रहे हैं हम? noise is the barrier of communication. This is the one type of barrier. noise क्या होता है? बड़े पैमाने पर साउंड होना, बड़े पैमाने पर बैरियर्स होना, उस चीज़ को हम नॉइज़ कहेंगे। ये चीज़, और जैसे कि मैंने कहा कि इनकोडिंग और डिकोडिंग, नॉइज, ये सभी चीज़ें हम प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की जब पढ़ेंगे तब ठीक से लाइन टू लाइन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अभी घबराने, फिलहाल इतना ध्यान में रखिए कि नॉइज़ क्या होता है
नॉइज़ एक तरह का समस्या है, एक तरीके की समस्या है, ठीक है। नंबर 5 देखेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट भी बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर प्रिंसिपल्स में। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इज़ नॉट गुड इट मीन्स इट इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन। अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट करता है, प्रॉफिट नहीं हो पाता है, लॉस होते रहता है। तो ये क्या चीज़ है बेटा, वहाँ के जो बंदे हैं, जो एम्प्लॉयज़ है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट। क्या मैं बोल रहा हूँ, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, दबा हुआ क्लाइमेट है। बॉस के अंदर में दबे हुए लोग हैं, बॉस जो कहेगा वही वो करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि क्लाइमेट भी महत्वपूर्ण होता है वाइल वी आर कम्युनिकेट टू समवन। ऐसे में बॉस की ही सुननी पड़ती है, एम्प्लॉय की बॉस नहीं सुनता है। तो ऐसे समय में क्या होता है, इट इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन। सो वी नीड टू फ्री क्लाइमेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ्री क्लाइमेट उपलब्ध कर देना चाहिए। फ्री क्लाइमेट हमें जोन निर्माण करना चाहिए, खुद से होता है। जब हम देखिए ना, अब मुस्कुराते हैं हम तो मुस्कुरा दिए, सामने वाला क्या करेगा, मुस्कुराएगा ना। कुछ होते हैं खड़ूस, वो नहीं मुस्कुराते, लेकिन आप एक बार मुस्कुराओ, 2 बार मुस्कुराओ, बाद में वो अपने आप वो उसके चेहरे पे स्माइल आ सकती है या आ जाती है, आप देखते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। सो दिस इज द 5th पॉइंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। नंबर 6 पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। लेट्स सी। अगर आपको अच्छा लग रहा है बेटा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मैं बार बार नहीं कहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। नंबर 6 क्लाइमेट के बाद में नंबर 6 टेक्नोलॉजी। देखिए ना, टेक्नोलॉजी भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं अभी यहाँ पर बैठे मेरे घर में बैठकर आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो दिस इज़ दी हेल्प बाय टेक्नोलॉजी। दिस इज़ द ब्रॉडकास्टिंग। अब ये ब्रॉडकास्टिंग कैसे हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है ना, तो ये कैसे हो रहा है बेटा, ये टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इन द न्यू सिनेरियो यू शुड गुड कम्युनिकेटर। देखिए ना, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर है बट इफ़ यू कांट सी, ओके, बट इफ़ यू कांट यूज़ द न्यू अपडेटेड टेक्नोलॉजी, अगर आप अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करें, वही पुराना विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10, विंडोज़ के आगे बहुत सारे अपडेटेड मॉडिफाइड्स है, वो अगर आप नहीं यूज़ कर पा रहे तो आप क्या हो, आप क्या हो बेटा, टेक्नोलॉजी फॉर द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। इट मीन्स योर कम्युनिकेशन इज नॉट इन द गुड वे, इट मीन्स लैक ऑफ इफेक्टिविटी। देखिए ना, तो ऐसे समय में आप कौन हो, आप क्या है, आपसे क्या हो रहा है, लैक ऑफ इफेक्टिविटी हो रही है, आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो। तो कभी भी कम्युनिकेशन करते समय टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, लेटर सेंड करते थे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या करते थे बेटा, लेटर सेंड करते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, कोई भी मैसेज डिलीवर करना है तो सभी एम्प्लॉयज़ का हमारे पास में एक चीज़ है, क्या बोलते हैं बेटा, बिल्कुल समझ गए, क्या, ईमेल। क्या है, ईमेल। ईमेल के जरिए हम सभी टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ईमेल के जरिए सभी एम्प्लॉयज़ को हम अपना मैसेज अभी डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपके बॉस को ये पता ही नहीं है तो आपका बॉस का कम्युनिकेशन कैसा होगा, इफेक्टिवली नहीं है, लैक ऑफ इफेक्टिविटी वहाँ पर दिख रही है। सो दिस इज द 6th पार्ट ऑफ प्रिंसिपल कम्युनिकेशन और 6th पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ आवर टूडेज, effective feedback. While we are using these points, technologies, climate, proper message selection of media, clarity of our object, we know that very well. While we transfer our message और हमने ये सभी पॉइंट्स ठीक से लिए हैं तो हमें अपना फीडबैक इफेक्टिवली मिलेगा। अगर नहीं लिए है, कहीं पर आपका बैरियर है, उसको आपने रिमूव नहीं किया है, तो आपका ये इफेक्टिव फीडबैक आपको नहीं मिलेगा। लेट्स सी नंबर 7 पॉइंट, इफेक्टिव फीडबैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए ना, जैसा कि मैंने यहाँ पर खुद से ही बताया है, क्या है बेटा, कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में या कम्युनिकेशन के मेथड में। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके,
फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। देखिए ना, रिसीवर के पास से हमें क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। फीडबैक क्या है, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर फॉर द सेंडर इफ गुड और बैड। जैसा हो, अच्छा हो या बुरा हो, फीडबैक फीडबैक होता है। अगर आपकी बात आप किसी के पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग टू टेल टू योर फादर फॉर समथिंग, बाय अ न्यू बाइसिकल और बाय अ न्यू लैपटॉप और अ मोबाइल, तब अगर आपने आपका मैसेज ठीक से डिलीवर किया है तो पापा आपको वो चीज़ लेके देंगे। अगर नहीं किया है, इसका मतलब आपको इफ़ेक्टिव फीडबैक नहीं मिला। सो सिंपल। तब आपका फीडबैक कैसा होता है, बैड फीडबैक होता है। तो दैट्स योर प्रॉब्लम, इट मीन्स यू आर नॉट टू रिमूव योर बैरियर्स। सो दैट इज़ द पॉइंट। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स में अगर आपको क्वेश्चन पूछा, while the timing of practical, supervisor asks you a questions or a examiner asks you a questions, what is the feedback, that time you have to respond to them। वो आपका फीडबैक है, आपने उनको रिस्पॉन्स किया ना बेटा, तो वही आपका फीडबैक हो गया। तो रिस्पॉन्स क्या करना है, रिस्पॉन्स आपको करना है आंसर। एंड व्हाट इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फीडबैक। सो फीडबैक इज अ रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। इट्स अ सो सिंपल। देखिए ना यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। तो ये सभी पॉइंट्स थे बेटा, एक बार फिर से देखेंगे, फटाफट देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रॉपर मैसेज, selection of media which is a channel, a removal of barriers, climate, technology, effective feedback। so these are the principles। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हम MCQs रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन लेके आएंगे। वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो आंसर भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस।